اسلحہ اور ڈالروں پر جو ضم ہے وہ بھی جلد اتر جائے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق نے واضح کیا ہے کہ افغان عبوری حکومت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے حوالے کرے اور TTP کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتے ہوئے افغانستان میں موجود اس کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کما کرے۔ 200 پاکستانی بدقسمتی سے سرحد پار حملوں میں ہر مہینے شہید ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ہم نے غیر قانونی غیر ملکیوں کا ٹیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ افغان لیڈرز تند و تیز بیانات سے گرمی نہ پیدا کریں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ اپنے شہریوں کو سنبھالنے کا بندوبست کریں۔ ہم اس کے فوراً بعد رجسٹرڈ مہاجرین کو بھی واپس بھیجیں گے۔ اس وقت بلوچستان سے 80,000 تارکین وطن پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ ان میں 26,000 صوبہ سندھ سے بھی شامل ہیں۔ تقریباً 800 غیر تارکین وطن ہر دوسرے دن سندھ سے بلوچستان کے راستے نکل رہے ہیں اور یہ پورا پروسیس والنٹیرلی ہے۔ ہم نے بلوچستان میں تقریباً ایک ہفتے میں 1,000 کے قریب غیر تارکین وطن کو کسٹڈی میں لے کے اسے پاکستان بدر کیا ہے۔ آج جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کے پاس ایک چوائس ہے کہ وہ دہشت گردی اور پاکستان میں ایک کا انتخاب کرے، ہمارا جو کمپین ہے بالخصوص جو غیر تارکین وطن ہیں جو دہشت گردی اور کرائمز میں ملوث ہیں ان کے خلاف یہ کمپین جاری رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا بالخصوص کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور میوچول کنسنٹ اور انڈرسٹینڈنگ سے جو لاجسٹیکل چیلنجز ہمیں درپیش تھے وہ اوورکم ہو گئے ہیں اور اب اسموتھلی جو سندھ سے تارکین وطن ہیں ان کا سلسلہ اب آئندہ دنوں میں اور تیز ہو جائے گا۔ اور اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے بالخصوص چمن بارڈر پہ تقریباً 10,000 تک ہم روزانہ پروسیس کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو ہولڈنگ سینٹرز میں ان کی بائیو میٹرکس کر کے انہیں ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بڑا الحمدللہ حوصلہ افزا ہے۔ اسی طرح ہم پنجاب سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پروسیس آئندہ دنوں میں اور تیز ہو جائے گا اور وہ بھی بلوچستان کے راستے تارکین وطن کو پروسیس کرنے میں ہمارے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت جلد انشاءاللہ آپ سے اور بھی اس حوالے سے اعداد و شمار شریک کریں گے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ وغیرہ جن افغانیوں نے یہاں بنوا لیے ہیں جن سے یہاں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کب شروع کی جائے گی جب پتہ ہے کہ ہاں وہ افغانی ہے اور یہاں کے وہ شہری بن کے رہ رہے ہیں چاہے بلوچستان میں ہو سندھ میں ہو پنجاب میں ہو کہیں پر ان کے خلاف کارروائی؟ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے 2 ریجنز میں ابھی تک ہم نے 1 لاکھ کارڈز جو ہے وہ بلاک کیے ہیں۔ اسی طرح میری معلومات کے مطابق یہاں سندھ میں بھی تقریباً ابھی تک 20,000 سے زیادہ ID کارڈز بلاک ہو چکے ہیں اور جو اس وقت پروسیس ہے نادرا کا وہ بڑا ایفیشینٹ ہے۔
इसके लिए जो उन्होंने यानी कमेटीज़ बनाई हैं वो एफिशिएंटली काम कर रही हैं ताकि इस डेटा को प्रोसेस करके इस हवाले से यानी जो ब्लॉक हैं उनकी पे कार्रवाई करके हमें पता हो कि कौन से फेक हैं और कौन से असली हैं, क्योंकि ये अभी तक सस्पेक्टेड हैं और आइंदा दिनों में ये कार्रवाई मज़ीद तेज़ होगी। आप को मैं ये बताता चलूँ कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो लाखों में है, लाखों में लोगों ने जेली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं, जो एक खौफनाक और तशवीशनाक अमर है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ नादरा का, जिस एफिशिएंसी से वो इस चैलेंज को टैकल कर रहे हैं अपने तमाम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, न सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट्स बल्कि जो बॉर्डर्स पे जो बायोमेट्रिक का एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है उससे भी नबर्द आजमा हो रहे हैं, क्योंकि एक कमरे में आपको कम अज़ कम 2 मिनट लगते हैं कि एक तारकीन वतन के 10 अंगुलियों के निशानात का बायोमेट्रिक्स आप लेते हैं। तो उनका जो IVM सिस्टम है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंट हो गया है और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि FIA के साथ नादरा का ये कोलैबोरेशन बड़ा इफेक्टिव है। जानकर ये बताइए कि ये जो प्रोसेस चल रहा है तो इसमें दुनिया भर से आपको क्या फीडबैक आ रहा है सिफारती सतह पे? दूसरा ये कि आप समझते हैं कि इस तरह की सारी कोशिश से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुकात का ताल्लुक है, बदकिस्मती से ताल्लुकात जो है वो नोज़ डाइव गए हैं। हम लाशें उठा रहे हैं। अभी एक हफ़्ता पहले बलूचिस्तान के जोब में ये सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, यानी 31 अक्टूबर को दहशतगर्दी का वाक़या होता है। उसमें 6 लोग दहशतगर्द होते हैं जिसमें सारे अफ़गान नेशनल्स हैं। ये सिर्फ इस हफ्ते के फिगर्स हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि तकरीबन पिछले 2 साल में इस अबूरी हुकूमत के आने के बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं, जिनमें खुदकश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। 2 साल में पाकिस्तान में इस अबूरी हुकूमत के आने के बाद, यानी अफ़गान अबूरी हुकूमत के आने के बाद 500 खुदकश हमलों में इजाफा हुआ है और इसी तरह दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो ब्लैक मार्केट में जो अमेरिकन असला फ़रोख्त किया जा रहा है वो एक और थ्रेट है जो अभी जो मियांवाली में वाक़या हुआ उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी बराह रास्त इसका ताल्लुक़ अफ़गान मार्केट से है, जो एक ग्रे मार्केट की शक्ल पे हमारे सामने आया है, जो हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जो मुट्ठी भर दहशतगर्द अफ़गान सेंचुरीज़ में हैं वो अमेरिकन असला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात जो है वो नोज़ डाइव हैं। अच्छा, जानकी साहब ये बताएं कि जो वाक़यात इतने हो रहे हैं, हमने देखा अभी पिछले दिनों बहुत सारे हमले भी हुए हैं हमारे फोर्सेस के ऊपर, तो ये क्या इसका रिएक्शन है? आपके कहने का मतलब है कि ये जो कानून को आप यहाँ से भेज रहे हैं ये उसका है? देखिए, हम ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन इसको हम बेच रहे हैं और हम अफ़गानिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वहाँ पे गैर कानूनी पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हमें हैंड ओवर करें। ये हमारा राइट है, क्योंकि वो एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे उनकी सेंचुरीज़ हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और वो राइट अफ़गान अबूरी हुकूमत के नोज़ के नीचे ये हो रहे हैं। अब ये जब आप रेट्रिक्स के लेवल पे बात करते हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये हकीकत है। रही ये बात, हमने 40 साल से इन लोगों को नहीं भेजा, आज भेज रहे हैं, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये महसूस नहीं हो रहा कि ये जो पूरा अमल हो रहा है इसमें पाकिस्तान बेहतर तरीके से तो वापस भेज रहे हैं, लेकिन सिफारती सतह पे अफगानिस्तान की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं किया गया या कोई मैच्योर बातचीत नजर नहीं आई। देखिए, पहली बात ये कि अगर कोई मैच्योर रिस्पांस होगा तो मैच्योर बातचीत होगी। हमने एक सावरन राइट को असर्ट करना है, इंटरनल सावरनिटी हमारा ये कि इस मुल्क में जो भी यानी फॉरेनर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों, उसको हमने अपने मुल्कों में भेजना है। तो इसका कंसेंट तो हम उनकी फॉरेन ऑफिस से तो नहीं ले सकते हैं कि जी हम ये फैसला कर रहे हैं, आपके ख्यालात क्या हैं। ये हमारा सावरन डिसीजन है जो पाकिस्तान ने रियासत के तौर पर किया है। अब इसकी लाजमी बात है, वहाँ पे उनके पास प्लान बी नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि नहीं आप इसको रखें, कोई भी यानी मुल्क ये नहीं कह रहा, लेकिन हम कब तक
कोई प्लान भी आपके पास है? नहीं। आज अगर हम इसको नहीं बेचते तो कब बेचेंगे? तो ये बेसिकली उनके अपनी यानी एक कोताही है जिसका हमसे इनका कोई डायरेक्ट उनका सरोकार नहीं है। अच्छा फिर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि अफगानियों को हम भेज रहे हैं, तो अफगानियों के इस्लाह के बाद निकाले जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग किसी और कौम के खिलाफ अगर करते हैं इस तरीके का एक्शन तो वो क्या होगा? और दूसरा, आपने जाली कार्ड्स की, ID कार्ड्स की बात की, तो इनके बनाने वाले कौन हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? पहली बात ये कि तमाम तारकीन वतन को हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 92% से ज़्यादा जो है वो अफ़गान्स हैं। लिहाजा लाजमी बात है जो बल्क है वो वही लोग हैं जिनको हम भेज रहे हैं। बाकी लोगों को भी हम भेज रहे हैं, लेकिन उनको तादाद कम होने की वजह से फिगर्स में आपको सामने नज़र नहीं आते हैं। लेकिन गैर तारकीन वतन जो भी हैं वो तो एक उसूली फ़ैसला है एज ए प्रिंसिपल। दूसरी बात ये कि जो आपने इसकी बात की अफ़गान आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने बात की कि जो जाली आपने कहा कि ID अच्छा, जो कार्रवाई हम करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। जो हमारी यानी सेंसिटिव प्रीमियर एजेंसी है वो तहकीकात कर रही है उन लोगों की जिन्होंने जेली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं, जिन्होंने इन लोगों से पैसे लिए हैं। ये अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ एहतसाब होगा और उनकी आप सबको यानी सामने आ जाएगा कि ये अनएक्सेप्टेबल उन्होंने इस मुल्क के लिए इस साथ किया है। एक कराची में जो तादाद बताई गई है वो तो ज़्यादा बताई गई है, लेकिन जो जा रहे हैं बस ज़्यादा देखिए इसकी स्टेटिस्टिक्स हमारे पास चमन बॉर्डर पे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप किधर से आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कराची के इस इलाके से, उस रोड से, उस महल्ले से। लिहाजा इसलिए हमें आसानी होती है जो सिंध से डेटा कंपाइल यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हमारा जो चमन पे जो सिस्टम है वहाँ पे डेटा बड़ा ऑथेंटिक है, क्योंकि हर इलाके के जो भी तारकीन वतन हैं उनका एड्रेस हम रिकॉर्ड करते हैं। सुबह उनका रिकॉर्ड करते हैं कि वो किस सूबे से आ रहे हैं, तो हमें इसलिए आसानी है कि हम आसानी से उसको लिंक करते हैं कि कहाँ से, कराची से, सिंध से कितने लोग कितने दिनों में आ रहे हैं। अच्छा सर, क्या आप ये समझते हैं कि लोग पाकिस्तान पॉलिसी है ऑलरेडी एक दहशतगर्दों की कार्रवाइयां चल रही हैं जो अलहदगी पसंद हैं वहाँ पर, क्या इन जो अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द हैं उनके साथ उनकी कोई कोलैबोरेशन भी है, कि इस तरह की चीज़ भी आप लोगों की नॉलेज में है? देखिए, अब दहशतगर्दी तो आपको मालूम है कि दो किस्म की है। एक ये कि शहरों में दहशतगर्दी होती है, उनके भी ताने बाने जो है क्रॉस द बॉर्डर से सेंचुरी से मिलते हैं। दूसरे एग्जैक्ट बॉर्डर्स पे हैं, बॉर्डर से क्रॉस यानी क्रॉस करके हमारे जवानों के जो पोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जिससे हमारे जवान शहीद होते हैं। तो दो तरीक़ों से ये थ्रेट अफगानिस्तान से इमिनेट होता है। कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि गैर कानूनी तारीखीन वतन को निकालने के मामले पर जो एक आईनी इस्तेहकाम का इस्तेमाल करना चाहिए था, और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमातें वो इस रियासत के फैसले के खिलाफ, आइन के खिलाफ काम करें, तो हुकूमत उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है जो तारीखीन वतन की वतन वापसी को भी जो मुतनाज़ा बना है? देखिए, रियासत पाकिस्तान के इस फैसले के सामने जो है जो भी सियासी पार्टियां खड़ी हैं, अवाम उनका एक कड़ा एहतसाब करेंगे और उनको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक दरीना मसला है जो आज तक किसी भी सियासी गवर्नमेंट के पास कोई विल नहीं था कि उस मसले को निमट सके। इस वजह से हमारे सिस्टम्स पे इसका जो दबाव आया, आखिर में दहशतगर्दी की शक्ल में हम इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि दहशतगर्दी जारी रहे? क्या वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो हमारी आपकी आम लोगों की लाइवलीहुड है, उनके लिए जो स्पेस है, जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं, जो स्कूल सिस्टम्स हैं, वो इसी तरह ओवरवेल्म हों? क्या ये उनकी ख्वाहिश है? लेकिन उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता और उनके लिए इसके ख़तरनाक नताइज होंगे और इसका बोझ वो नहीं उठा सकेंगे। सवाल ये है कि ये जो है तो सिर्फ जो है अफगानी शहरियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस दौरान में जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अज़बक, ताजिक, किर्गिस्तान और दीगर जो है मशरिक़ रफ्ता के जो ममालिक हैं उनके बाशिंदे भी बाय अफगान जो है वाले हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कह सकते हैं कि अभी तक आपके पास कितने आदाद शुमार हैं कि इन ममालिक के लोगों को आपने भेजा है? देखिए, इस वक्त जो है वो अफगान
जिसमें पश्तून्स भी शामिल है, जिसमें उज़्बेक्स भी शामिल है, जिसमें हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, जिसमें फ़शई भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग शामिल हैं जिनका नाम शायद आपने नहीं सुना, लेकिन वो हैं और वो इसमें शामिल हैं। लिहाजा वो एक ख़ास मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं। सिर्फ अफ़गान आइडेंटिटी के नीचे हमने उनको जो है वो क्लब किया हुआ है, लेकिन वो हम उसकी सब कास्ट या सब आइडेंटिटी पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अफ़गानिस्तान के रास्ते जिस भी नेशनलिटी का, जिस मुल्क का भी बाशिंदा आया है, उसको हम निकालेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम एक तरफ तो लीगल रिजीम ला रहे हैं अपने मुल्क में और उसमें कुछ लोगों को इस्तिस्ना दें। तो ये प्रिंसिपल है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, चूँकि एक नेशनलिटी के लोग ज़्यादा हैं, उसके डिप्लोमेटिक फॉल आउट है, उसके साथ बायोलेटरल इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसका जो है वो एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। सर क्या आप मतलब आपकी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, आप ये नहीं समझते कि हमारी पॉलिसी में यकसुई नहीं है? यानी आज से कुछ अर्से कबल जब ये लोग जो भी है जो अफगानिस्तान में आ गए हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ के वो आ गए हैं। बिलावल साहब, हिना रब्बानी साहब पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं कि इनको जो है तस्लीम होना चाहिए। फिर हमारे जनरल साहब जो है वो जाते हैं और वही दहशतगर्द जिसको आज भी दहशतगर्द के पहले भी थे, जिन्होंने सवाल के कुछ किया, जिनके खिलाफ जो है जब हुआ वज़ीरिस्तान में, उनको वापस ला के उन इलाकों में बिठा देते अमन मुआहदे के नाम पर। और जब उनके हाथ से वो बच्चे निकल जाते हैं तो फिर ऐसी पॉलिसी तश्कील देते। आज आप हैं 3 महीने हैं, 3 साल हैं, फिर कोई और आ जाएगा। यकसुई हमारी पॉलिसी में क्यों नहीं है ऐसी चीज़ों की? अच्छा, विद द हाइंड साइड कहना आसान है कि ये सारी तनकीद हम अपने सामने रखें और गवर्नमेंट्स पे करें, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। आज हमारी जो पॉलिसी है ये आज की नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगी, ये फेंस्ड है। जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, इनका ये प्रोसेस जो है वो कोई भी गवर्नमेंट आएगा वो कंटिन्यू करेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी हमने इनिशिएट की है तमाम स्टेक होल्डर्स इसको बैक कर रहे हैं। ये स्टेट का फैसला है और पाकिस्तान ने इसको आगे लेके चलना है। तो जो भी पोलिटिकल गवर्नमेंट आएगा वो मजबूरन उसकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे, ये दरमियान में रहने वाला नहीं है। रही ये बात कि बायलैटरल रिलेशंस में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हमने बहुत से ऐसी पॉलिसियाँ की हैं जिसमें हमें खुद सबक हमने सीखा है, लेकिन हम करक्शंस अप्लाई करते हैं जिस तरह एक नॉर्मल मुल्क को, हर मुल्क गलतियां करता है, फॉरेन पॉलिसी में भी हमने की हैं और इसमें यानी कौमें करक्शंस अप्लाई करती हैं। तो ये करक्शन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो 40 साल में नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से, एक सियासी बैकलैश की डर की वजह से और सियासत और सियासी पार्टियों की वोट बैंक की वजह से ये फैसला नहीं हो सका था। 7 मिनिस्ट्रीज इसको डील कर रही थी, फिर भी वो एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इस बात पे एक कन्वर्जेंस है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है मन वन, और ये कंटिन्यू रहेगा। आखिरी क्वेश्चन प्लीज। बयान सामने आया है, उसने ये कहा है कि अफगानिस्तान में हालात अच्छे न होने के बाद इस हालात में अफगानियों को अफगानिस्तान भेजना अच्छा नहीं है, हुकूमत को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। जरदारी साहब आपको मालूम है, एक मंजे हुए सियासतदान है, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी एक राय है, वो काबिल एहतराम राय है, लेकिन ये फैसला हो चुका है, इस पर तनकीद तो हक है आपका भी, जरदारी साहब का भी, कोई और पाकिस्तानी शहरी का भी, लेकिन द डिसीजन हैज़ बिन मेड। अब हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे, चाहे इसके जो भी अवाक़िब या कॉन्सिक्वेंसेस हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चमन बार्डर से कोयटा मोर्चा कोयटा पहुंचे, फिर शुरू किया, फिर वो वापस कराची आ गया, वहां पे फिर कहें आप, सॉरी सर, ये जो है पाकिस्तान से गैर मुल्की शहर के इंतकाल का मामला है। अफगान शहर को चमन छोड़ने के दौरान सामने आ रही है। कराची से चमन बार्डर जाने वाला अफगान शहरी वापस आ गया है, कैसे आया? चमन बार्डर उतारते हैं, फिर लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम कराची में फिर वहाँ से जो कोटा से फिर वो सोशल मीडिया को आप ज़्यादा ना सीरियस लिया